موبائل میں گم ہے. قرآن کے پنے نہیں پلٹے جاتے لیکن انسٹاگرام کے پوسٹ ہر گھنٹے اسکرول ہوتے ہیں. نبی کی سیرت نہیں پڑھی جاتی لیکن یوٹیوب شارٹ ہر رات دیکھے جاتے ہیں. نقصان کیا ہے؟ آنکھیں خراب ہوتی ہے, وقت کی بربادی گناہ کا دروازہ کھلا دیتا ہے, دل سے نماز, قرآن اور ماں باپ کا ادب ختم ہو جاتا ہے. جانتے ہو ہمارے پیارے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دن کام, عبادت اور لوگوں کی بھلائی میں گزار جاتا تھا. آپ فضول کاموں سے بچتے تھے اور کہتے تھے انسان کے اسلام کی یہی خوبی ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے. سوال یہ ہے ہمارے پاس جب وقت تھا کیا ہم نے قرآن سیکھا؟ جب آنکھیں ٹھیک تھی کیا ہم نے ماں باپ کا چہرہ دیکھا؟ جب موبائل نہیں تھا کیا ہماری زندگی گناہوں سے پاک نہیں تھی؟ حل کیا ہے؟ ہر روز 1 گھنٹے موبائل بند رکھو, قرآن یا کتاب پڑھو. بے وجہ موبائل استعمال مت کرو, ٹائم فکس کرو. صبح اٹھتے ہی موبائل نہیں بلکہ وضو کر کے قرآن پڑھو. توبہ کرو, نیت کرو کہ میں موبائل کی غلام نہیں اللہ کی بندی ہوں. اگر تم نے اس پر قابو پا لیا تو تم کامیاب ہو, ورنہ یہ تمہیں گناہوں کی دلدل میں لے جائے گا. جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی قدر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موبائل کے فتنوں سے بچائے, قرآن اور سورت کا عاشق بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد عنایہ عرفان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, وہ اسٹیج پہ آئے اور تقریر پیش کرے آپ کے سامنے. میرا نام انصاری عنایہ ہے. ہم اس دنیا کی چمک دمک کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں اور غریبی کو ناکامی. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ امیر ہے اور جو خالی ہاتھ ہے وہ مفلس ہے. لیکن آئیے ذرا نبی کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے دیکھتے ہیں اصل مفلس کون ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں آپ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس نہ ہی درہم نہ مال و متاع ہے. آپ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا. اگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا تو اس کے سارے نیک اعمال میں سے دے دیے جائیں گے. اگر اس کے نیک اعمال ختم ہو گئے اور اس کا حساب ابھی بھی باقی رہا تو اس کے گناہ اس میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میرے عزیزو, یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ علم صرف ظاہری نہیں ہوتی. اگر حقوق العباد نہ پورے کرے جائیں تو نماز, روزہ اور زکوٰۃ بھی ہم کو قیامت میں نہیں بچا پائے گی. آئیے آج ہم اپنا جائزہ لیں. کیا ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق نہیں کھاتے؟ کیا ہم کسی کی غیبت, چغلی یا بہتان سے بچتے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ اگر جواب نہیں ہے تو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق, زبان اور حقوق العباد کی بھی عزت کریں, ورنہ ہم قیامت میں مفلس کہلائیں گے. چاہے لوگ دنیا میں ہم کو نمازی کہیں, حاجی کہیں یا عابد کہیں. معزز حاضرین, آج ہم یہ ہدایت کرتے ہیں کہ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, کسی کی غیبت, چغلی یا بہتان سے بچیں گے. اچھے اخلاق, پاکیزہ کردار, نرم زبان سے اپنی پہچان بنائیں گے, تبھی ہماری عبادت کام آئے گی اور قیامت میں ہم کو کامیابی نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم کو ظاہری عبادت کے ساتھ باقی اخلاق اور حقوق العباد کی بھی پابندی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما الا اللہ والمؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انصاری سعدیہ نور عبدالرفیق ہے. آج میں آپ کو ایک پیاری حدیث سناؤں گی جو ہمیں برائیوں سے بچنے کا سبق دیتی ہے. اب میں حدیث پڑھتی ہوں. 5 برائیاں اور ان کی 5 سزائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف مخاطب ہو کر فرمایا
اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ان کی سزائیں تم پر آئیں گی۔ میں اللہ ہی پناہ چاہتا ہوں کہ پوری چیزیں تم تک پہنچے۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں بے باکی اور بے حیائی یعنی فحاشی بدچلنی عام اور کھلم کھلا ہو جاتی ہے تو اس قوم میں ایسی بے مثال بیماریاں وبا مہاماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان میں سے پہلے لوگوں کو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2، جب لوگ تول ماپ یعنی ماپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قحط سالی یعنی سوکھی روزی کی تنگی اور ظالم حکومت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتے ہیں، اگر جانور نہ ہوتے تو انہیں کبھی بھی بارش نہ ملتی۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ اور ان کے رسول کے عہد وعدے یعنی وعدہ حکم کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دوسری قوموں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کا بہت کچھ چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، جب ان کے حکمران یعنی لیڈر قاضی اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ کے اترے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپسی جھگڑے اور دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ 5 برائیاں اگر کسی قوم میں پھیل جائے تو ان کی سخت سزائیں دنیا میں ہی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعائے معصورہ، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونغفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ونصلی ونسجد وإلیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منصوری ام الخیر اصغر علی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب دل ہو پریشان تو سجدہ کیا کرو اور اس کے بارگاہ میں توبہ کیا کرو۔ جب دل ہو پریشان تو سجدہ کیا کرو، مشکل ترین کام بھی ہو جائے گا آسان، مشکل ترین کام بھی ہو
सजदा किया करो। रस्ता बदल के मौत भी निकलेगी देखना, रस्ता बदल के मौत भी निकलेगी देखना। बस तुम खुदा की राह सदका किया करो और उसकी बारगाह में तौबा किया करो। जब दिल हो परेशान तो सजदा किया करो। हरगिज़ बुराइयों की तरफ मैं न जाऊँगा, हरगिज़ बुराइयों की तरफ मैं न जाऊँगा। इस तरह अपने आप से वादा किया करो और उसकी बारगाह में तौबा किया करो। जब दिल हो परेशान तो सजदा किया करो। सुभान अल्लाह। ये थी उम्मुल खैर असगर अली मंसूरी, जो बेहतरीन अंदाज में आपके सामने नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रही थी। अब मैं आपके सामने हमारे अजीज़ मोहतरम इरफान भाई की बेटी अनअम वो आए और अपनी चाहत का इजहार करें। अनम इरफान पठान। नाम अनम पठान इरफान है। मैं वो बेटी बनना चाहती हूँ जिस पर मेरे माँ बाप फख्र करें और क़यामत के दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत करें। मैं हया पर्दे वाली बनना चाहती हूँ, क्योंकि एक मुसलमान लड़की की पहचान है। या अल्लाह, मुझे अपनी नबी के प्यारा बना दे और मेरे नबी को मेरे प्यारा बना दे। आमीन या रब्बी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अंसारी मोहम्मद रेहान है। पहला सवाल, नमाज में कहाँ हाथ बांधना सुन्नत है? सुन्नत ये है कि नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर हाथ नाफ के नीचे बांधना सुन्नत है। जैसा कि सुनन अबू दाऊद शरीफ में कि हज़रत अली इरशाद फरमाते नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधना सुन्नत है। और इसी तरह हज़रत वाइल फरमाते हैं कि मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर हाथ नाफ के नीचे रखते हुए देखा। इसलिए हम अहले सुन्नत जमात का यही क़िदा है कि हम हालत नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधते हैं, जो कि सुन्नत से साबित हुई। और जबकि कुछ लोग औरतों की तरह सीने पर हाथ बांधते हैं, जो कि सुन्नत के खिलाफ है। और आका भी चाहते हैं हम इसी तरह खड़े रहें, क्योंकि गुलाम अपना आका के सामने यूँ ही खड़े रहते हैं और इसमें अदब का बेहतरीन पहलू नज़र आता है। और जबकि कुछ लोग नमाज में खड़े होते हैं तो पता ही नहीं चलता मस्जिद में खड़े या अखाड़े में। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नमाज में रफ़े यदैन यानी हाथ उठाना, रफ़े यदैन करना कैसा है? कुरान और हदीस की रोशनी में के हम अहले सुन्नत जमात यह क़िदा रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नमाज में रफ़ा यदैन फरमाते थे, फिर आपने रफ़ा यदैन करना छोड़ दिया और नमाज में बार बार रफ़ा करने से मना फरमा दिया। और सुनन अबू दाऊद शरीफ में के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज की देता यानी शुरू में अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाते थे, फिर बाकी की नमाज में हाथ नहीं उठाते थे। और हज़रत सैयदना जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर हमारे पास मस्जिद में तशरीफ़ लाए और ये फरमाए कि मुझे क्या है कि मैं तुम्हें रफ़ा यदैन करते देख रहा हूँ, जैसे सर्कस घोड़े मिलते हैं, लिहाजा नमाज में अदब से खड़े रहना चाहिए। सवाल, किराते खल्फे इमाम
यानी इमाम के पीछे नमाज में कीरत करना कैसा है। कुरान और हदीस की रोशनी में के हम अहले सुन्नत जमात का यह किता है कि इमाम की किरात ही मुक्तदियों के लिए काफ़ी होती है। चुनांचे कुरान हदीस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ से लअल्लकुम तुरहमून, और जब कुरान पढ़ा जाए उसकी तरफ कान लगाए रहो, खामोश रहो ताकि तुम पर रहम हो। सूरह अनफाल आयत नंबर 207। हज़रत अल्लामा अब्दुल्लाह बिन अहमद नस्वी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस आयत से साबित हुआ जब कुरान पढ़ा जाए, जब नमाज मगर खारिज नमाज, उस वक्त सुनना और खामोश रहना वाजिब है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने नमाज पढ़ी और चंद आदमों के इमाम के साथ किरात करते सुना। जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया क्या वो वक्त कभी नहीं आए तो तुम समझ और अकल से काम लो, और जब कुरान पढ़ा जाए उसकी तरफ कान लगाए रहो, खामोश रहो जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। और एक हदीस में कि हज़रत अबू मूसा बिन अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब फरमाई और सुन्नत के मुताबिक नमाज कायम जीवन जिंदगी बसा करने की तौफीक अता फरमाई और नमाज का तरीका बताया और ये फरमाया कि नमाज पढ़ने से पहले अपने सुबह को दुरुस्त कर लो। तुम में से तुम्हारा कोई इमाम बने, जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो किरात करे तो तुम खामोश रहो, और जब वो कहे तो तुम आमीन कहो। इन तमाम हदीसों से मालूम हुआ कि इमाम का किरात करना फरीज़ा है, बहुत ड्यूटी है। मुक्तदी को किसी भी नमाज में किरात करने की कोई गुंजाइश नहीं और इजाज़त भी नहीं। सवाल, नमाज में गैर मुताल्लिक का काम यानी नमाज में गैर मुताल्लिक हरकत कितनी मरतबा करने से नमाज फासिद हो जाती है। अगर कोई शख्स किसी एक रुकन में कोई गैर मुताल्लिक का काम 3 बार करता है तो नमाज फासिद हो जाती है और उस पर एज़ा लाजिम हो जाता है। यानी इस तरह के एक बार घुराया फिर आटे डालिया, फिर दूसरी बार घुराया फिर आटे डालिया, फिर तीसरी बार घुराया फिर आटे डालिया, इस तरह की हरकतें से नमाज फासिद हो जाती है। लेकिन एक बार हाथ रखकर चंद बार घुराया, इसका एक ही बार घुराना शुमार किया जाएगा। नमाज में इन गैर हरकतों से ना सिर्फ नमाज के हयात को नुकसान पहुँचता है बल्कि खुशी और खुशी में भी खलल पड़ता है। लिहाजा पूरी नमाज संस्कृत की इत्मीनान और अदब के साथ अदा करनी चाहिए। टी शर्ट पहनकर नमाज अदा करना कैसा है। आधी आस्तीन वाला कपड़ा, अगर कोई शख्स टी शर्ट वाला लिबास पहनकर नमाज पढ़ता है जब तक सटन ढका हुआ हो, कपड़ा पाक हो तो कोई, लेकिन फुल आस्तीन वाला कपड़ा मौजूद हो और जानबूझकर आधी आस्तीन वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़े तो ये अमल मकरूह तंज़ीह है। नमाज एक पाकीज़ा इबादत है, इसमें अदब तहज्जुद का होना बहुत ज़रूरी है। किसी के पास कोई लिबास नहीं, सिर्फ आधी आस्तीन वाला लिबास है तो उसको पहनकर नमाज पढ़े तो उसमें कोई गुनाह नहीं और नमाज सही रहेगी। और फुल आस्तीन वाला शरीयत के मुताबिक कपड़ा मौजूद हो तो उसी को पहनकर नमाज पढ़े क्योंकि वो अदब के करीब और सुन्नत मुआफिक है। असर की नमाज के बाद नफल नमाज अदा करना कैसा है। असर की फ़र्ज नमाज अदा करने के बाद से लेकर सूरज डूबने तक नफल नमाज पढ़ने से मना फरमाया गया। क्यों मना फरमाया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औकातों में नमाज ना पढ़ने का हुक्म दिया है। नंबर 1 सूरज निकलने के वक्त, नंबर 2 सूरज डूबने का वक्त और नंबर 3 असर की नमाज से सूरज डूबने तक। सवाल, तकबीर यानी इकामत के वक्त खड़े रहना कैसा है। जैसा कि कुछ लोग पूरी तकबीर के दौरान खड़े रहते हैं। हम अहले सुन्नत वाली जमात के मुताबिक तकबीर के पहले खड़े रहना सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत ये है कि हय्या अलस सलाह या कद कामत सलाह कहा जाए जब खड़े होना चाहिए। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर के दौरान हय्या अलस सलाह पर खड़े होते थे। फैसला, तकबीर के पहले खड़े रहना मकरूह है। सुन्नत है कि हय्या अलस सलाह कहा जाए जब खड़े होना चाहिए। नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है।
नमाजी के आगे गुजरना शदीद गुनाह है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाला जानता है कि इस अमल का कितना बड़ा गुनाह है तो वो 100 साल खड़े रहना पसंद करता, उसे एक कदम चलने से बेहतर समझता। और दूसरी रिवायत में ये है कि अगर वो शख्स जान जाते कि नमाजी के आगे से गुजरने में कितना बड़ा गुनाह है तो वो ये तमन्ना करता, काश मैं जमीन में घंसता हूँ लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुजरूंगा। मुकम्मल मसला समझ ले, अगर कोई शख्स नमाजी के आगे से गुजरता है तो नमाजी की नमाज नहीं टूटती लेकिन गुजरने वाला शदीद गुनहगार होता है। और दूसरी तरफ नमाजी को चाहिए ऐसी जगह ना खड़े रहे जहाँ गुजरने का रास्ता हो और दूसरे को परेशानी ना हो और वो गुनहगार ना बने। हुसैन हसीन अंसारी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और उसकी हिदायत के लिए अंबिया करम भेजे, नबी करीम आखिरी नबी बनाकर भेजे गए और कुरान मजीद जैसी मुकम्मल आयत और जामे किताब नाजिल की गई जिसमें एक फर्द, खानदान और पूरे मुआशरे की इस्लाह वाज़ेह तौर पर मौजूद है। एक खूबसूरत इस्लामी मुआशरा वही होता है जो कुरान की तालीमात पर अमल करता हो, जिन पर अमल करने से पाकीज़ापुर अमन, उख़्वत व मोहब्बत से भरपूर बन जाता है। अल्लाह व रसूल से आगे न बढ़ो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही। यह आयत निहायत अहम है क्योंकि इसमें इताअत खुदा और रसूल की बुनियाद रखी गई है। इसका मतलब ए ईमान वालो, अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल से आगे न बढ़ो। यह आयत निहायत अहम है, इसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर किसी बात या अमल में उनसे आगे नहीं बढ़ना है, चाहे वो अकीदा हो, इबादत हो, माशरती रवैया या खानदानी मामला हो। हर जगह शरीयत की रहनुमाई को फैसला कून मानो। जो चीज़ कुरान और सुन्नत में हलाल है उसे हलाल जानो और जो हराम है उसे हराम मानो, चाहे तुम्हारे जज्बात कुछ भी कहे। आज हम अपनी ख्वाहिशात, रस्म रिवाज, मीडिया, मशहूर शख्सियत या सोसाइटी के दबाव को शरीयत से आगे रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ज़माना बदल गया है, अब पर्दे की क्या ज़रूरत है, हमें तो सिर्फ नियत देखनी है, अमल की क्या हमें। या अल्लाह और रसूल से आगे बढ़ने के जुमरे में आता है जो निहायत संगीन गुनाह है। नंबर 2, खबर की तहकीक करो, फैसले से पहले जांच पड़ताल लाजिम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिक बिनबइन फतबय्यनु। अल्लाह ताला हमें यहाँ एक महाशर्ती सानिया से बचने का उसूल दे रहा है। अगर कोई फासिक, गुनाहगार, बेदीन या गैर मोतबर शख्स कोई खबर लाए तो फौरन यकीन ना करे, पहले तहकीक करे, सबूत हासिल करे, मामले की तह तक जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बेगुनाह पर इल्जाम लगा दो, बाद में शर्मिंदा होना पड़े। आज का माशरा, आज लोग कान के कच्चे हो गए हैं, सुनी सुनाई बात को रद्द अमल देते हैं। सोशल मीडिया पर किसी के वीडियो या पोस्ट देखकर उसकी इज्जत उछाल देते हैं बिना तहकीक किए। सही मुस्लिम अमली हिदायत, कभी भी किसी के बारे में सुनकर फौरी फैसला न करें, खास तौर पर जब बात इज्जत और बदनामी की हो तो पहले तहकीक करें। यही कुरान मजीद का सही हुक्म है और यही फैसले यही खूबसूरत मुआशरे की इस्लाह है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नावे मुनाफ खान पठान है। मेरे अज़ीज़ों में उम्मे हमारा रज़ियल्लाहु अन्हा बनना चाहती हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुर साबिया थी। जंगे अहद का दिन था जब लोग डर के मारे इधर उधर होने लगे। उम्मे हमारा आगे बढ़ी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे डट गई। उन्होंने दवा के बाहर भी खाए, नीचे के जख्म बिछाए, मगर एक पल के लिए भी पीछे न हटे। उनके शरीर पर जख्म है, उनकी जुबान पे यही था कि मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ न है। मैं भी उम्मे हमारा बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दिन के लिए बहादुर बनो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमेशा कायम रखूं। मेरी दुआ है या अल्लाह मुझे भी दिन की बहादुर बेटी बना दे। अब उसके बाद तकरीर करने के लिए
زینب وسیم کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. زینب وسیم آئے اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زینب فاطمہ عبدالوسیم انصاری ہے. سنانے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد وبارک وسلم. آج میں اپنی چاہت کا اظہار آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہوں گی. لوگوں کے اپنا خواب اور اپنی اپنی چاہتیں ہوتی ہیں، لیکن میری چاہت سب سے اعلیٰ اور انوکھی ہے. میری چاہت مجھے اپنے رب سے اور اپنے محبوب سے جوڑتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں تاکہ مریضوں کا علاج کر سکوں. میں وکیل بننا چاہتی ہوں تاکہ جرم کو روک سکوں. میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ بچوں کو پڑھا سکوں. لیکن میں کہتی ہوں کہ میں صحابیہ بننا چاہتی ہوں. کیونکہ صحابیہ وہ تھی جن کے قدموں کی دھول کو جنت بھی رست سے دیکھتی ہے. کیونکہ صحابیہ وہ تھی جنہوں نے اپنی جان نبی کریم کی محبت میں قربان کر دی. کیونکہ صحابیہ وہ تھی جو دنیا کی چمک دمک نہیں بلکہ رسول اللہ کا دیدار چاہتی تھی. کیونکہ صحابیہ وہ تھی جن کی قربانیوں سے آج دین اسلام ہمارے پاس پہنچا. دنیا کا ڈاکٹر جسم کا علاج کرتا ہے، لیکن صحابیہ ایمان اور عقیدے کا علاج کرتے ہیں. دنیا کی وکیل ایک کیس لڑتی ہے، لیکن صحابیہ کفر اور شرک کے خلاف اسلام کا مقدمہ لڑا. دنیا کا پولیس والا ایک علاقے کے مجرم کو پکڑتا ہے، لیکن صحابیہ نے پورے سماج کے گناہوں کو روکنے کی کوشش کی. دنیا کی ٹیچر کچھ بچوں کو پڑھاتی ہے، لیکن صحابیہ نے اپنی اولاد کو ایسے سنوارا کہ وہ اسلام کی سپاہی اور قرآن کی خادم بن گئے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ میں دنیا کی چمک نہیں چاہتی، میں دولت اور شہرت نہیں چاہتی. میری تمنا ہے کہ میرا ایمان صحابیہ جیسا ہو، میری حیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جیسا ہو، میری قربانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسی ہو، میرا صبر حضرت زینب رضی اللہ عنہا جیسا ہو، تاکہ قیامت کے دن جب سب کانپ رہے ہوں میں اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب کھڑی ہوں اور اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. اب یہ بننا چاہتی ہوں کیونکہ میری منزل دنیا نہیں، میری منزل جنت ہے. میرا مقصد دنیاوی عزت نہیں بلکہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زلیخا بانو سرور انصاری ہے. آج میں ان سے زلیخا سے جنت اور جہنم کے بارے میں سوال جواب کروں گا، سوال پوچھوں گا جس کے بارے میں وہ جواب دے گی. جنت کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہمیشہ رہنے والی وہ خوبصورت جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ایمان اور نیک عمل کے بدلے عطا کرے گا. جنت کیسی ہے؟ جنت راحت، سکون، خوشی، نعمات کی جگہ ہے. یہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ موت، نہ تھکان، نہ بڑھاپن. جنت کس دن پیدا کی گئی؟ جنت پیر کے دن پیدا کی گئی. دو بات ایک حدیث مبارکہ میں آئی ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن جنت کو پیدا فرمایا. جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جنت میں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے. جنت میں کل کتنی صفیں ہوں گی؟ جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی. جنت میں کتنے دریا ہوں گے؟ جنت میں کل 4 دریا ہوں گے. پہلا دودھ کا، دوسرا شہد کا، تیسرا پانی کا، چوتھا شراب کا.
जन्नती शराब से कौन सी शराब मुराद है? जन्नत में जो शराब दी जाएगी वो दुनिया की शराब जैसी नहीं होगी। दुनिया की शराब नशा आवारा, नापाक और अकल खराब करने वाली होती है, जिसे इस्लाम में कष्ट दिया गया है। लेकिन जन्नत की शराब खुशबूदार और लजीज होगी, उसमें कोई नशा या बुराई नहीं होगी। जन्नत में सबसे पहले कौन सी उम्मत दाखिल होगी? नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगी। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले कौन जन्नत में जाएगा? उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले हमारे नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल होंगे। औरतों में सबसे पहले कौन दाखिल होगी? औरतों में सबसे पहले हमारे नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा दाखिल होंगी। जन्नती जन्नत में किस वक्त दाखिल होंगे? कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद नेक लोगों को दाखिल होने का हुक्म दिया जाएगा। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? अल्लाह ताला का दीदार जन्नत की सबसे बड़ी नियामत होगी। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के कुल 8 दरवाजे, हर एक अमल के नेक अमल के लिहाज से। दोज़ख क्या है? दोज़ख अल्लाह ताला की बनाई हुई सजा की जगह है, जो कुफ्फार गुनाहगारों के लिए तैयार की गई है। जहन्नम में सबसे हल्का अजाब क्या होगा? जहन्नमियों को आग के जूते पहनाए जाएंगे, जिसकी गर्मी से उसका दिमाग उबलने लग जाएगा। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा। जहन्नमी लोग क्या खाएंगे? जहन्नमियों को आग, जकुम का दरख्त, पीप और खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। क्या मुसलमान भी जहन्नम में जाएंगे? जो गुनाहगार होगा सजा पाकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा, पर हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब उसके बाद हमारे अजीज मोहतरम तस्लीम भाई की बेटी अदीना नूर को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो आएगी और आपको नमाज के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएगी जो हर कोई नहीं जानता, तो आपको उनकी बातें तवज्जो के साथ सुननी है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अंसारी अदीना नूर मोहम्मद तस्लीम अंसारी है। आज मैं आपके सामने नमाज का मुकम्मल तर्जुमा पेश करने जा रही हूँ। हम सब नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ते ये नहीं जानते। जब तक हम नमाज के अल्फाज को समझेंगे नहीं, इबादत में मजा नहीं आएगा। जब समझेंगे नहीं तो अल्लाह से रिश्ता कैसे बनेगा। इसलिए आज आप सबसे गुजारिश है कि तवज्जो से सुनिए, दिल से सोचिए और नमाज को समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब मैं शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह के साथ। पहला स्टेप नियत। मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज फजर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। दूसरा स्टेप तकबीर-ए-तहरीमा यानी नमाज शुरू करने के लिए अल्लाहु अकबर कहना, इज्जत के साथ। अब दुनिया पीछे और अल्लाह सामने। तीसरा स्टेप सना पढ़ना, सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मतलब ऐ अल्लाह तू पाक है और मैं तेरी हम्द करती हूँ। तेरा नाम बरकत वाला है, तेरी शान बुलंद है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। चौथा स्टेप ताउज़ तस्मिया, मतलब मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। पांचवा स्टेप किरात यानी सूरह फातिहा पढ़ना, उसके बाद कोई सूरत पढ़ लेना। छठा स्टेप रुकू यानी झुकना, रुकू में 3 बार सुबहान रब्बिल अजीम पढ़ना, मतलब पाक है मेरा अजमत वाला। सातवां स्टेप कोमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, मतलब अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी हम्द की। रब्बाना लकल हम्द, ए हमारे रब तमाम तारीफें तेरे लिए। 8वां स्टेप रुकू के दरमियान की तस्बीह सुबहान रब्बिल आला, मतलब पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। नमाज के दरमियान की तस्बीह सुबहान रब्बी गफिरली वरहमनी, मतलब ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। 10वां स्टेप दूसरी रकात वही तस्बीह। 11वां स्टेप
तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ना। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। मतलब तमाम काली पहली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए है। ए नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें उनकी बरकतें हो। हम पर भी सलाम हो और अल्लाह के तमाम बंदों पर सलाम हो। और मैं गवाही देती हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। और मैं गवाही देती हूँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल है। दरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मतलब ए अल्लाह रहमतें नाज़िल फरमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर जिस तरह तूने बरकतें रहमतें नाज़िल की है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, बेशक तुम मुझ बड़ी बुजुर्गी वाला है। 13वां स्टेप सलाम दुआए मासूरा अल्लाहुम्मा रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। मतलब ए अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। ए मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमा ले और मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और दूसरों मोमिनों को भी जिस दिन हिसाब कायम होगा। 14 स्टेप सलाम पढ़ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मतलब तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें उनकी बरकतें हो। 15 स्टेप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। मतलब ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस दोस्त मुश्ताक भाई शेख की बेटी रूबा शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब किसी कौम में गद्दारी आम हो जाए तो फिर उनका जवाब यकीनी है। मतलब ये है कि किसी भी कौम में अंदरूनी बिगाड़ और गद्दार से शुरू होता है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हम वो कौम है जिसे अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी है। अगर हम उसे छोड़कर किसी और चीज़ में इज़्ज़त तलाश करें तो अल्लाह हमें ज़लील कर देगा। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कौम तबाह नहीं होता जब दुश्मन उस पर हमला करते हैं, बल्कि तब तबाह होता है जब उनके अंदर गद्दार पैदा हो जाते हैं। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अबू हामिद सानी फरमाते हैं हम बैरूनी साजिशों के हाथ नहीं हारे, हम उन गद्दारों के हाथ हारे जो दुश्मन की ज़बान बोलते थे। मतलब ये है कि बैरूनी दुश्मन से मुकाबला मुमकिन है मगर कौम के अंदर छुपे हुए गद्दार सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं मैं उम्मत मुस्लिमा के बच्चों में ये जज्बा देखना चाहता हूँ कि उनकी आंखों में नींद ना आए जब तक मस्जिद अक्सा आज़ाद ना हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं मैं दुश्मन की तादाद से नहीं डरता, मैं उन गद्दार से डरता हूँ जो कौम के भीतर छुपे बैठे हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि जब कौम के नौजवान सिर्फ अपने मतलब की फिक्र करने लगे तो समझो कौम का जनाजा निकल चुका है। अब मैं बयान करने के लिए हमारे अजीज़ मोहतरम दोस्त सरफराज उर्फ लाल मियाँ की बेटी मायशा सरफराज मंसूरी को आपके सामने पेश करता हूँ। वो आए और आपको नमाज के मुतालिक बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश करें। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मंसूरी मायशा है। मैं आपके सामने एक तकरीर करना चाहती हूँ। उससे पहले एक बार दुरूद पाक ताज़िया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये एक सत्ता है जिन्हें तो गिरा समझता है, हजार सत्तों से देता है आपने को निजात। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईमान के बाद अगर कोई अमल सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है तो वो है नमाज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 80 से ज़्यादा मकामात पर नमाज कायम करने
की नमाज और मुसलमान लाजिम तौर पर जुड़े हुए हैं। नमाज के बगैर ना ईमान मुकम्मल होता है ना इस्लाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज अल्लाह की रज़ा का सबब है, ईमान का अज़्ज़ है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक है। नमाज मोमिनों की मिराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है। बेशक नमाज़ी अंधेरी कब्र का चिराग है, उन करने के सवालात का जवाब है। इश्क हो तो इबादत में वो ना आता है, खाली सत्य में तो दुनिया ही बसा करती है। कुछ लोग कहते हैं सब फर्ज अदा करना है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कर्ज अदा कर रहा हो। नमाज इश्क है, नमाज मोमिनों की महराज है, नमाज अल्लाह की, नमाज इश्क है, नमाज रब की रज़ा का सबब है, ईमान का अज़्ज़ है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के ठंडक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज इश्क है, नमाज रब की मुलाकात का ज़रिया है। ए मेरे रब, हमें नमाज का शौक अता फरमा, नमाज का शौक अता फरमा, दिलों में मोहब्बत अता फरमा, आमीन। फातिमा अब्दुल मंसूरी करूँगा जिसके वो जवाब देगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम बहार फातिमा है और मेरे वालिद का नाम अब्दुल वहाब है। सबसे पहला सवाल, असहाबे कहफ कौन थे? असहाबे कहफ कुछ नौजवान थे जो अपने दौर के बादशाह से ईमान बचाने के लिए कहफ में जाकर छुप गए। अल्लाह ताला ने उन्हें 309 साल के लिए सुला दिया। जब वो उठे तो ज़माना बदल चुका था और लोग ईमान ला चुके थे। इनका जिक्र कुरान की सूरह कहफ आयत नंबर 9 से 26 में मौजूद है। मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं? अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों के मुंह में ज़बान पैदा की है, लेकिन मछली के मुंह में ज़बान क्यों नहीं दी गई? जब इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया, तब अल्लाह ताला नाराज़ हुआ और उसे ज़मीन पर फेंक दिया, तो वो समुंदरों की तरफ जाकर गिरा। तब उसने मछलियों को बताया कि एक ऐसी मखलूक आएगी जो तुम्हें खाएगी। मछली से ये बात राज ना हुई, उसने जाके पूरे समुंदर वालों को बता दिया। इसके लिए अल्लाह ताला उससे नाराज़ हुआ और उसके मुंह से ज़बान महरूम कर। मर्द के कफन में 3 कपड़े और औरत के कफन में 5 कपड़े क्यों दिए जाते हैं? मर्द के कफन में 3 कपड़े और औरत के कफन में 5 कपड़े इसलिए दिए जाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गेहूं का दाना खा लिया तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हुआ और उनके जिस्म से जन्नती लिबास उतार लिया गया। तो उन्होंने इंजीर के 3 पत्तों से अपनी शर्मगाह जगह को छुपाया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 5 पत्तों से अपनी शर्मगाह जगह को छुपाया। इसके लिए मर्द के कफन में 3 कपड़े और औरत के कफन में 5 कपड़े दिए जाते हैं। आखिरी सवाल, वो कौन से नबी हैं जो सर कटने के बाद भी हक और सच्चाई बयान करते रहे? वो नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम है जिनका सर एक जालिम बादशाह के हुक्म से कलम कर दिया गया। मशहूर रिवायतों के अनुसार जब उनका सर ज़मीन पर गिरा तो उससे ला इलाहा इल्लल्लाह और सच्चाई निकलने लगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादिया आरिफ अंसारी को आपके सामने पेश करता हूँ। वो आए और कुरान अजीम फुरकान हमीद के मुतालिक चंद सवालों के जवाब पेश करें। मेरा नाम अंसारी नादिया खानम मोहम्मद आरिफ है और मैं इनसे कुरान के मुतालिक सवाल करूँगा, वो उसके जवाब देगी। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है जिसे उसने हर इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया। ये ऐसी आसमानी किताब है जो हर ज़माने के लिए हिदायत का सरचश्मा है। कुरान क्यों नाजिल हुआ? कुरान इसलिए नाजिल किया गया ताकि लोग अल्लाह ताला के अहकाम को जाने, हिदायत के रास्ते पर चले, गुमराही से निकले। ये लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। कुरान में क्या क्या बातें हैं? कुरान में गुजरे हुए कौमों और नबी के वाक़ये हैं, आने वाले ज़माने की खबरें, जन्नत की रहमतें, जहन्नम का अजाब, इबादत के तरीके, दुनियाई हकीकत का बयान। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? कुरान मजीद में 30 पारे हैं जिसे बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है ताकि तिलावत और याद करने में आसानी रहे। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं जो अलग अलग नाम और मजमून रखती हैं।
कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं, जिसे इस तरीके से तय किया गया है ताकि कुरान की तिलावत 7 दिन में मुकम्मल कर सकें। कुरान मजीद में कितने रुकू और सजदे हैं? कुरान मजीद में रुकू 540 है, जिसे बड़ी सूरत बराबर हिस्से में बांट दी गई है ताकि तिलावत में आसानी रहे, और सजदे 14 है जो तिलावत के वक्त अदा किए जाते हैं। कुरान मजीद में मक्की और मदनी सूरतें कितनी हैं? कुरान मजीद में मक्की सूरत 86 है और मदनी सूरतें 28 हैं। मक्की और मदनी सूरतों का क्या मतलब है? मक्की सूरत वो है जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, चाहे मदीना शरीफ में या मक्का शरीफ में, और मदनी सूरत वो है जो हिजरत के बाद नाजिल हुई, चाहे मदीना शरीफ में या मक्का शरीफ में। कुरान मजीद में कुल कितने हुरूफ हैं? कुरान मजीद में कुल 3,23,671 हुर्फ है, और हर एक हुर्फ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ, और तिलावत करने वाला हर एक हुर्फ पर अज्र पाता है। कुरान मजीद में कुल कितने कलिमात हैं? कुरान मजीद में कुल 77,439 कलिमात है, और हर एक कलिमात अपने अंदर हिदायत और नसीहत का खजाना रखता है। आखिरी सवाल, कुरान कितने साल में मुकम्मल नाजिल हुआ? कुरान तकरीबन 23 साल में मुकम्मल नाजिल हुआ, 13 साल मक्का शरीफ में, 10 साल मदीना शरीफ में। तकरीर करने के लिए मैं खुशाब सरफराज मंसूरी को आपके सामने पेश करता हूँ। काबिल एहतराम हजरात सादात इज़ाम, रौनक स्टेज और मैं तवील एहतराम मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहीम बरकाती साहब व ज़िक्र उलमा इकराम, सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलातु व सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलि सय्यिद व अला आलि लज़ीना सईदु बिमारिदिल हक़्क़ व हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर फ़ारूक आज़म व उस्मान ज़ुन्नूरैन व सदिल्लाह गालिब अली मुर्तज़ा व इब्न इमाम हसन मुज्तबा व सिब्त इमाम हुसैन शहीदा दाफ़िल क़ल्बि वल बला'i व उम्मिहिमा सय्यिदतिन निसाई फ़ातिमत ज़हरा वबनी सय्यदी व सनदी व शेख अल मुफ्ती अख्तर रिज़ा व जमीअ सुन्नती व जमाअती दायमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिल कुरान तरतीला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रसूल व आले रसूल में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी भर की रियाजत का लहू लगता है, जिंदगी भर की रियाजत का लहू लगता है, इतना आसान नहीं है कारी कुरान होना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला अपने पाक कलाम पाक में इरशाद फरमाता है वरत्तिल कुरान तरतीला, यानी कुरान को खूब ढेर ढेर कर पढ़ो या और इत्मीनान और तज़ीज़ के साथ पढ़ो ताकि हर जुदा रहे, हर मखरज सही हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिर और मुकम्मल किताब है जिसे उसने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। ये वो मुक़द्दस किताब है जिसने भटकी इंसानियत को सीधे रास्ते दिखाए। बेशुमार गुमराह लोग इसी कलाम मजीद की बरकत से इस्लाम कबूल करके कायनात के अज़ीम रहनुमा बन गए। यही वो किताब है जो हर तरह के तहरीफ, बदलाव, तब्दीली और मिलावट से पाक है, जो हर दौर में इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है। कुरान क्या है? कुरान इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है, कुरान इंसानियत के लिए मंसूर हयात है, कुरान इंसानियत के लिए ज़ाब्ते हयात है, कुरान पूरी इंसानियत के लिए आबे हयात है। मगर अफसोस आज का मुसलमान अपनी दुनिया और दुनियावी तरक्की में इतना मसरूफ हो गया है कि कुरान को सीखने, समझने और उस पर अमल करने में कोसों मील दूर हो गए, जबकि कुरान की तालीम और तजवीज़ के साथ पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इतनी तजवीज़ सीखना कि हर दूसरे से मुमताज़ हो, फ़र्ज़ आइन है, बगैर इसके नमाज़ पढ़ना का दिन बातिल है। आवाम भी तारों को तो जाने ही दीजिए, जो ख़ास कहलाने वाले उनको देखा कि कितने इस फ़र्ज़ पर अमल करने वाले हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना किनको, उलमा को, मुफ्तियों को, मुदर्रिसों को, मुसन्निफों को कुल हु अल्लाहु अहद में अहद को छोटी हकीकत पढ़ते हुए। हवाला बताओ रज़िया जिल्द 3 सफ़ा नंबर 253। मगर अफसोस बहुत से लोग तजवीज़ से गाफिल हैं, वो जानते नहीं तजवीज़ क्या है। तजवीज़ से मखारिज से कुरान पढ़ना आज के किसी कारियों आलिमों को बनाया हुआ उसूल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। आज के किसी कारियों आलिमों को बनाया उसूल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन अफसोस आज के मदरसे ऐसे हैं जहाँ कारी खुद तजवीज़ नहीं जानता तो बच्चों को कहाँ से तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ना सिखाएगा। Reciting the Quran is not just a mistake. Reciting the Quran wrong is not just a mistake. It means playing
the words of kings. यानी कुरान गलत पढ़ना सिर्फ एक गलती नहीं, ये बादशाह के अल्फाज को गलत जगह रखना है। अगर हमें मालूम हो जाए कि कहीं पर कुरान तजवीज़ के साथ नहीं पढ़ाया जाता तो ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को भेजना गुनाह में ढकेलने के बराबर है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा कुरान पढ़ता है, लेकिन ये भी तो देखें कितना गलत पढ़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल शाद एहतराम हजरात सादात इज़्ज़म, रौनक स्टेज उलमाए ज़वील एहतराम, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल अमीन बरकाती साहब व दीगर सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब सबसे पहले सवाल है, सहाबी किसे कहते हैं? जिन खुशनसीबों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और उनका खात्मा यानी इंतकाल ईमान की हालत में हुआ हो, उन खुशनसीबों को सहाबी कहते हैं। सहाबाई किराम की तादाद कितनी है? मुख्तलिफ अक़वाल के मुताबिक सहाबाई किराम की तादाद 1,14,000 या उससे ज़्यादा थी। उनमें से तकरीबन 10,000 सहाबा सिर्फ हज्जतुल वदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया। सबसे पहले सहाबी और सबसे आखिरी सहाबी कौन है? सबसे पहले सहाबी का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और सबसे आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जिनका विशाल तकरीबन हिजरी सन 100 में हुआ और आपके बाद दौरे सहाबा खत्म हो गया। किसी भी सहाबी की गुस्ताखी करना कैसा? किसी भी सहाबी की गुस्ताखी हराम है और सख्त गुनाह है, बाहर शरीयत में है। किसी भी सहाबी के साथ सुए अकीदत यानी बेअदबी, बदमज़हबी, गुमराही और जहन्नम का मुस्तहिक है और ये है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाजिराते सहाबा किसे कहते हैं? रज़ियल्लाहु सहाबा इकराम और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो भी इख्तिलाफात जंगे या फितने के वक्त पेश आए, जैसे जंग जमल, हजरत अली और हजरत आयशा सिद्दीक़ा का मामला हो और जंग सिफ़ीन, हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया का वाक़या हो और दिगर बाहमी नज़ात हो, उन्हें मुशाजिरात सहाबा कहते हैं। मुशाजिराते सहाबा पर अहले सुन्नत का क्या अकीदा है? हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हम मुशाजिरात सहाबा में ना किसी की तौहीन करते हैं, ना किसी को गाली देते हैं और ना फैसले करते हैं, बल्कि खामोशी इख्तियार करते हैं। हमारा अकीदा है कि तमाम सहाबा आदिल व बाईमान है और नेक है और जो भी इख्तिलाफात हुए वो इज्तिहाद की बुनियाद पर हुए और दोनों तरफ खैर थी। मुशाजिराते सहाबा पर बहस करना कैसा है? मुशाजिरात सहाबा पर बहस करना गुमराही है और हराम है। जो लोग सहाबा पर फिरका परस्ती करते हैं या उनकी जंगों को बहाना बनाकर बुक्स निकालते हैं, ऐसे लोग अहले सुन्नत के रास्ते से हटे हुए हैं। इस बताओ, सहाबा और अहले बैत में क्या फ़र्क है? सहाबा वो है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और ईमान के साथ दुनिया से गए, और अहले बैत नबी के घर वाले हैं। अहले सुन्नत उनसे मोहब्बत और अदब रखती है और किसी के साथ दुश्मनी नहीं करती। राज़ी किसे कहते हैं? राज़ी वो लोग हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान से और सहाबा किराम से दावत रखते हैं, गालियाँ देते हैं या उन्हें काफिर कहते हैं। ये लोग अहले सुन्नत से खारिज और गुमराह फिरके वाले हैं। शिया किसे कहते हैं? शिया वो फिरका है जो सिर्फ हज़रत अली को अकबर मानते हैं और दूसरे खुलफा को गाजिब कहते हैं। ये लोग बाद सहाबा को बुरा कहते हैं और अहले सुन्नत से सही अकीदे से हटे हुए हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबी, कातिब वही, आदिल बादशाह, फकीह और दलीलुल कद्र मुसलमान थे। ये हमारे आरिफ भाई के बेटे अरकान आरिफ अंसारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमाज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर नबी और आले नबी यानी सरवर दो आलम
रहमतुल लिल आलमीन हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत लेकर हाजिर हुआ हूँ जो हमारे दिलों को झिझोड़ती है, हमारी रूह को जगाती है और हमें हमारी असली मकसद की याद दिलाती है। और वह अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करना, ये वो अमल है जो न सिर्फ हमारी दुनिया को संवारता है बल्कि हमारी आखिरत को भी रोशन करता है। ये वो रास्ता है जो हमें अल्लाह तबारक व तआला की रजा और जन्नत की शहर तक ले जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुछ भी अता किया, चाहे वो माल हो, दौलत हो या खाने पीने की चीज़ें हों या फिर हमारी सेहत और वक्त, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। ये हमारा नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है। और जब हम इस अमानत को अल्लाह तबारक व तआला के बंदों पर खर्च करते हैं, जब किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी यतीम का हाथ थामते हैं, किसी मजलूम की पुकार सुनते हैं या मस्जिद मदरसे दीन के काम में हिस्सा लेते हैं, तो दरअसल हम अल्लाह तबारक व तआला को दे रहे होते हैं। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला को खुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो कुछ तुम अल्लाह तबारक व तआला की राह में दोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका बदला देगा। सोचिए मेरे भाई और बहनों, ये कितना बड़ा सौदा है। हम थोड़ा सा देते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका कई गुना बदला देता है। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम अपने खाने पीने पर, कपड़ों पर, मोबाइल पर, दुनिया की रंगीनियों पर हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर जब बात आती है किसी यतीम गरीब की मदद करने की या मस्जिद मदरसे में खर्च करने की या दीन के काम में हिस्सा लेने की, तो हम कहते हैं पैसे नहीं है। क्या ये इंसाफ है? क्या यही वो जज्बा है जो हर एक मोमिन का होना चाहिए? हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खर्च करो और गिन गिन कर मत दो, वरना अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हें गिन गिन कर देगा। जमा मत करो वरना अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारे लिए जमा करके रखेगा। इस हदीस शरीफ से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें अपने माल को अल्लाह तबारक व तआला के राह में दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं तो हमें भी अपने माल को गिन गिन कर नहीं बल्कि दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। अगर माल है, दौलत है, कपड़ा है, खाना है, तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में दो। यतीम है, फकीर है, मस्जिद है, मदरसा है, खुद दो। अगर तुमने आज खर्च किया तो अल्लाह तबारक व तआला कल तुम्हारे लिए आसमान के खजाने खोल देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब मदद करते हैं तो गिन गिन कर तोल तोल कर देते हैं, इतना काफी है, इतना बहुत है, इससे ज्यादा क्यों दूं। याद रखो, अगर तुमने जमा करके दिया तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हें गिन गिन कर देगा, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने गिन गिन कर दिया तो तुम्हारे हिस्से में कुछ बहुत ही कम आएगा। और याद रखो, माल जमा करने की आदत हमें अल्लाह तबारक व तआला से दूर कर देती है। खुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, खराबी है उसके लिए जिसने माल जोड़ा और गिन गिन कर रखा। और एक हदीस पाक में है कि आदमी का अपना माल वही है जो उसने अपनी मौत से पहले कुछ आगे भेजा, यानी अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च किया, और जो कुछ उसने पीछे छोड़ दिया वो तो उसके वारिसों का है। यानी जो कुछ तुमने अपनी ज़िंदगी में खर्च किया वो तुम्हारा है, और जो छोड़ दिया वो तो किसी और का है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कमाया हुआ माल तुम्हारी कब्र में काम आए तो उसे अपनी ज़िंदगी में खर्च कर दो। अगर तुमने जमा करके छोड़ दिया तो वो सिर्फ बवाल बनेगा, कभी लड़ाई, कभी लालच, कभी फसाद। कई लोग कहते हैं कि मेरा माल, मेरी कमाई, मेरा घर, मेरी ज़मीन, बल्कि हकीकत ये है कि मरने के बाद ये सब छूट जाएगा और दूसरों का हो जाएगा। इस हदीस शरीफ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माल पर घमंड नहीं बल्कि उसका हक अदा करना चाहिए। याद रखो, इंसान को अपनी मौत का पता नहीं कब वो अपनी मौत के गले लग जाए और अपने रब से जा मिले। अक्लमंद वही है जो अपनी मौत से पहले अपने लिए कुछ आगे भेज दे, ताकि खुदा की दी हुई दौलत वो अक्सर खर्च करते हैं, खुदा की दी हुई दौलत वो अक्सर खर्च करते हैं, न तनहा जेब भरते हैं न तनहा पेट भरते हैं। अब आइए हम सब मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम अपने माल को तेरी राह में खर्च करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें बखीली से बचा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सखावत और दरिया दिली से नवाज दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने माल को कब्र और आखिरत की रोशनी बनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुमा। अब उसके बाद